अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर इंजमाम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज अब्दुल हकीम से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा इकोलॉजी का तीसरा लेक्चर है जिसके ऑब्जेक्टिव कुछ आपके सामने हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ इकोलॉजी, सम इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स एंड देन principles, terminologies. Second, we will discuss about how all factors, living, non-living, are dependent on each other, are in constant interaction with one another. And third one, explain an ecosystem, how we can study one. Summarize the concept of energy flow through a web, which is also a portion of our outline. So now comes towards the ecology. The Greek word origin eikos, house, study, house environment in which we live. The study of interaction that determines the distribution and disturbance of an organism within particular environment is known as ecology. So we can say that all are biotic and abiotic factor in one particular environment. It may be biotic factor and abiotic factor, the living parts of an ecosystem and the non-living parts of the ecosystem. Here you can see the examples of factors. Rocks, it includes air, water, soil, light, temperature, source of energy. Example of biotic components, it includes fungi, plants and microorganisms. Level of organizations, large region with typical plant and animal that includes several ecosystems. Level of organism starts from cell, tissues, organ systems, populations, community and biosphere. You know very well what is an organism. One individual living thing. What is a population? You know, population is a group of organism of same species living at a particular time. For example, are foxes living an area. मैं कहता हूँ अगर हम बात करें इंसानों की किसी एक ख़ास इलाकों में, मिसाल के तौर पे अब्दुल हकीम में तमाम ह्यूमन बीइंग्स की कितनी तादाद है, वो उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी. Then coming towards the species. Species is a group which can interbreed and produce fertile offspring. तो जो अपनी आगे नस्ल बढ़ा सके स्पीशी है. कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज ऑल द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया. अब ये थोड़ा सा बिगर लेवल है. क्या? जब इंडिविजुअल आपस में मिलकर रहें तो वो पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन मिलकर रहें तो वो क्या है? कम्युनिटी. लेकिन वो सेम एरिया के अंदर होनी चाहिए डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन. इसमें अब थोड़ी सी एग्जांपल हम देखते हैं. ऑल द फॉक्सेस, ग्रास हॉपर्स, स्नेक्स, हॉक्स एंड दे आर लिविंग इन वन एरिया, ईच फ्रॉम देयर इंडिविजुअल पॉपुलेशन बट टुगेदर मेक अप अ कम्युनिटी. इसमें आप फॉरेस्ट कम्युनिटी को भी ले सकते हैं. फॉरेस्ट एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है जिसके अंदर लिविंग कंडीशंस को हम देखते हैं. प्लांट्स को जिसमें ब्रायोफाइट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड देन कम्स द एबायोटिक फैक्टर. जब हम एबायोटिक फैक्टर को इंक्लूड कर देंगे तब वो आ जाएगा इकोसिस्टम में. तो कम्युनिटी प्लस एबायोटिक एनवायरनमेंट, दिस इज नोन एज इकोसिस्टम. अब ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद इकोसिस्टम. 5 लेवल्स पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. बायोस्फीयर, रीजन विद सिमिलर क्लाइमेट, टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इकोसिस्टम, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट इंटरेक्ट ऑन एनवायरनमेंट. कम्युनिटी, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया. Population is a group of organisms of same species that live in the same area. A single living organism made up of one or many cells that is capable of growing and reproducing. तो ये कंसेप्ट है इकोलॉजी का. Then comes the biotic components. All the living biotic factors in the ecosystem are known as
Biotic components. The biotic component of ecosystem can be divided into two larger groups. Autotrophic component, self-feeding and making their own food, and heterotrophic components, various feeding. Communities contain autotrophic and heterotrophics. Energy source, which is another topic of your outline. Flow of energy flow. This is very important topic according to ecology. All organisms require a source of energy to live. Of course, sunlight is the source of energy that powers almost all life processes on the earth. आजकल आप बायो एनर्जेटिक्स के लेक्चर पढ़ रहे होंगे इकोलॉजी 6 में, 6 सेमेस्टर ज़ूलॉजी में, और वैसे भी फर्स्ट ईयर में भी आप बायो एनर्जेटिक्स पढ़ चुके हैं। तो आप जानते हैं कि कोई भी जानवर जो है वो एनर्जी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। Then comes the autotrophs. Autotrophs are also called the self-producing organisms, food producing organism. They prepare their own food for the heterotrophic use. Without autotrophs there would no life on this planet. बिल्कुल सही कह रहे हैं। Sunlight, water, carbon dioxide into glucose through the process called photosynthesis. इसकी एग्जाम्पल है plants. Then comes the heterotrophs. Heterotrophs organisms that do not make their own food, even they depend upon autotrophs for their food. Another term for heterotroph is consumer, because they consume other organisms in order to live. Consume means eat, खाना, किसी चीज़ को इस्तेमाल करना. Animals are consumer because they eat, consume food provided by plants and other animals. For example, rabbits, deer, mushrooms. Heterotrophs, you are well aware about the autotrophs and heterotrophs. We are just reviewing our concepts for further studies. Primary consumers. Herbivores eat only plants, and then cows, elephants, giraffes, these are primary consumers. Then comes the heterotroph, secondary consumer, only मीट. अब यहाँ पे फ़र्क आ गया कि प्लांट्स को जो खाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर हैं उनको हर्बीवोर्स भी कहते हैं, और कार्निवोर जो सिर्फ गोश्त खाते हैं वो प्योर सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, जैसे लाइन, टाइगर, शार्क्स है. देन कम्स द हेटरोट्रॉफिक थर्ड लेवल, ओमनीवोर्स. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर नोन एज कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स. Then comes the consumers, scavengers, detritivores, fourth type of animals, feed on both tissues of dead organisms, both plants and animals. Scavengers, detritivores. Then comes the decomposer, absorb any dead material and break down into simple substances, bacteria and fungi. Decomposers break down nutrients in the dead stuff and return to soil. The producer then can use the nutrients and elements. The composer complete the system, returning essential molecule to the producer. अब यहाँ पे इसने ये एक डायग्राम बनाई हुई है समझाने के लिए कि सोलर एनर्जी है जिसमें हीट आ रही है सोलर एनर्जी से. अब ये मिल रही है प्रोड्यूसर को. प्रोड्यूसर जब नेक्स्ट लेवल में ये ट्रांसफ़र करता है एनर्जी, तो वो मिलती है कंज्यूमर को और साथ में हीट खारिज हो जाती है. उसके बाद ये हीट कैसे खारिज होती है ये आगे हमने डिस्कस करना है. कंज्यूमर से फिर जब वो मर जाते हैं तो फिर हीट रिलीज़ हो रही है और ये मिलती है जाके डिकम्पोज़र को. देन हीट रिलीज़ होगी, उसके बाद एक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. ट्रॉफिक लेवल्स एनर्जी जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लेवल्स मूव करती है. तो ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं?
Energy moves from one organism to another when it is eaten. Each step in this transfer of energy is known as trophic level. The main trophic level कौन से हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Producers, consumers and then developers, decomposers. The flow of energy through ecosystem is linear. Energy flows occurs in food chain. A chain is made up of links that are interconnected one by one. Scientists use the idea of links in a chain as a model for simple feeding relationship. A food chain describes the feeding relationship between producer, single chain of consumer in an ecosystem. तो मैं इसको आम लफ्ज़ों में बताऊं तो फूड चेन क्या है. फूड चेन एक लिंक होता है जो बता रहा होता है कि एनर्जी सन से अगर एब्जॉर्ब हुई है तो उसके बाद वो किसने हासिल की, फिर उससे किसने हासिल की. लाजमी बात है इसका यही होगा कि सबसे पहले इसको प्रोड्यूसर हासिल करेगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और देन टर्शरी कंज्यूमर इसको हासिल करता है. उसके बाद फिर ये एनर्जी लॉस्ट हो जाती है इन द यूनिवर्स. अब ये एक साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, ये बात याद रखनी है. फूड चेन में ये जो एनर्जी हम देखेंगे फूड वेब में, फूड चेन में एनर्जी, इसको फ्लो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जानवर के बाद जब दूसरे जानवर में ये कन्वर्ट होती है तो ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज कंज्यूम्ड वाइल द 90% ऑफ द रिमेनिंग एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट. Then comes the food chain. Food chain flow of energy from one trophic level to another. Food chain is simple and direct. It involves one organism at trophic level. Primary consumer, secondary, ये सारी वही बात है. Food chain always start with the plant. The lettuce is eaten by the slug. The slug is eaten by the bird. तो जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसे एक प्लांट को, लेटस को स्लग ईट कर रहा है और उस स्लग को देन कौन ईट कर रहा है, बर्ड. देन कम्स द फूड चेन. फूड चेन यहाँ सन से आप देख सकते हैं, ये सन है, इससे एनर्जी जो है वो कौन गेन कर रहा है, प्रोड्यूसर. अब प्रोड्यूसर को यहाँ से वाटर मिल रहा है तो ये बना रहा है ग्रास. अब ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर को खाएगा स्नेक को खाएगा हॉक, टर्शरी कंज्यूमर जो कि है. अब इसको फंजाई खाएगी, बैक्टीरिया खाएगी जो कि डिकम्पोजर है, और वापसी इसको सॉइल को दे देगा एबायोटिक फैक्टर की सूरत में. अब यहाँ पे 10% यहाँ पे लॉस हो गई, 10% यहाँ पे, 10% यहाँ पे, 10% यहाँ पे इस्तेमाल हुई, 90% यहाँ पे लॉस हो गई, 90%, 90%, 90%. तो हुआ क्या, उस एनर्जी का 0 पॉइंट समथिंग डिकम्पोजर को मिला. अब उसने अब ये वापसी देना है सॉइल को. तो ऊपर से सन मुसलसल एनर्जी इनपुट कर रहा है. इस तरह से फूड चेन के अंदर एनर्जी आती है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं होती, ये फ्लो होता है. देन कम्स द फूड वेब. फूड वेब इज़ अ मॉडल डिफरेंट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जब इसको ईट करते हैं. अब इसके लिए फूड वेब की डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं. असल मेन बात आपको यहाँ पे समझ आएगी फूड वेब के लिए कि व्हेन वी कैन शो दिस बाय यूजिंग अ फूड वेब विच इज़ जस्ट अ मोर कॉम्प्लिकेटेड वर्जन ऑफ अ फूड चेन. अब फूड चेन क्या है, मैं कहता हूँ ये ग्रास हॉपर है, ग्रास है, इसको रैबिट खा रहा था, देन ओल, ये एक फूड चेन है. इसी तरह से बेरीज़ को खाया माइस ने खाया फॉक्स को, ये एक फूड चेन है जो कि ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ. अब ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया फॉक्स ने, ये भी एक फूड चेन है. सीड को खाया माइस ने और इसको फॉक्स ने, ये भी फूड चेन है. ये सारी फूड चेन होगी. अब फूड वेब क्या होगा, जब लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ जाते हुए अपर लेवल का कोई भी एनिमल किसी दूसरी फूड चेन में से एनिमल को खा जाए तो वो कहलाएगा फूड वेब. अब मैं इसको प्रूव करता हूँ अपनी बात को. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ये बनाई थी, ग्रास से रैबिट की तरफ लिंक बनाया था, ये एक फूड चेन है. इधर से ये एक फूड चेन है, ये दो फूड चेन आपस में थी.
अब इनका इंटरेक्शन कैसे फूड वेब की सूरत में बन सकता है? ये जो बेरीज हैं इनको रैबिट्स खा जाएंगे, इसी तरह से ग्रास को माइस भी खा सकता है। देन फॉक्स क्या करेगी, वो इधर से माइस को तो खा रही थी, वो रैबिट को भी खा जाएगी। देन कम्स द ओल। अब ये हम तीसरी फूड चेन देखते हैं। ओल जो है वो माइस को खा जाएगा। तो इस तरह से ये आपस में इंटरेक्ट हो गई। डिफरेंट जो फूड चेन हैं वो आपस में मिक्स हो जाती हैं और इससे बन जाता है फूड वेब। देन कम्स द ट्रॉफिक लेवल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज दैट लीनियर और वन वे। ये बातें मैं अभी आपको बता रहा था कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी हैज़ बीन पास्ड used by an organism however lost as heat and unavailable to any other organism in the ecosystem। अब इसमें ये एक एग्जांपल बड़ी अच्छी इसने दी हुई। When zebra eats the grass it does not obtain all of the energy grass has much of it's not eaten। वो रिमूव हो जाती है फूडजात की सूरत में। When a lion eats zebra it does not get all of the energy from zebra। जब यानी कि एक लाइन जो है जब वो ज़ेब्रा को खाता है तो उसे सारी एनर्जी नहीं मिलती जितनी कि उसके जिस्म में थी, तो ये भी हीट के तौर पे ज़ाया हो जाती, जैसा कि हमने ऊपर साइकिल में देखा था। तो टू प्रीवियस एग्जांपल से हमें क्या बात समझ में आई है कि कभी भी वो तमाम एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में नहीं होती मुंतकिल जितनी उसके पास मौजूद होती है। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी फ्राम ट्रॉफिक लेवल इज़ ट्रांसफर टू द नेक्स्ट एंड दिस इज़ कॉल्ड 10% लॉ। तो ये 10% लॉ की डेफिनेशन भी है और ऊपर जो है हमने इसकी डिस्कस की है एग्जांपल्स। देन कमिंग टू द एनर्जी लॉस इन द फूड चेन। एनर्जी 10% एनर्जी इज पास अलोंग द नेक्स्ट लेवल्स इन द फूड। द रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस थ्रू वेस्ट, जो कि मैंने अभी बताया, हीट, मूवमेंट, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। Why is the energy is an ecosystem refer to flow not cycling। तो ये मैं आपको लेक्चर के शुरू से बता रहा हूँ कि एनर्जी जो है वो इकोसिस्टम से इंटर होती है सनलाइट के थ्रू, देन ट्रांसफर्स इन द केमिकल फूड वेब लीविंग द इकोसिस्टम एज हीट। इट इज़ नॉट रिसाइकल्ड विद इन द इकोसिस्टम। तो हीट में 10% ही ट्रांसफ़र होती है, 90% तो हीट के तौर पे रिलीज़ होगी, तो ये साइकिल नहीं कहलाएगा, ये फ्लो कहलाता है। Breaking the chain, organism living in habitat depends upon each other. If one part of the food chain dies out or greatly reduced, consumer have to find alternative food, moving away or starve। तो अगर वो कहता है किसी कम्युनिटी या इकोसिस्टम के अंदर कोई एक फूड सोर्स जो है वो मिसिंग हो जाए तो दूसरा जो उसको खा रहा था वो कोशिश करेगा अपना भूख को मिटाने की और कुछ नए सोर्सेज फाइंड करेगा, नहीं तो भूख से ही मर जाएगा। इट अफेक्ट्स मोर कंज्यूमर इन द सेम वे। लाजमी बात है, उसको जो जानवर खा रहा था वो कहाँ जाएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इसकी आप लोमड़ी की मिसाल ले सकते हैं। इसको शेर खा रहा था, अब सारी लोमड़ी ख़त्म हो गई एक जंगल से, तो फिर शेर किसे खाएगा, वो फिर बहुत ख़तरनाक बात हो जाएगी। एक्सटेंट आर इंडेंजर्ड स्पीशीज़, आप जानते हैं। वाई डज दिस हैपन? देर आर लॉट्स ऑफ रीज़न वाई एनिमल बिकम इंडेंजर्ड और एक्सटेंट। इसमें लॉस ऑफ हैबिटेट है, केमिकल पोल्यूशन है, केयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट, यू नो वेरी वेल। एंड देन कम्स द इकोलॉजिकल pyramid, दीज आर नॉट ओके। इकोलॉजिकल pyramids shows the relationship between consumer and producer at different trophic level in an ecosystem। तो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के दरमियान जो है ये रिलेशनशिप बताता है। अब इसमें आगे नीचे बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई हैं। सबसे पहले ये एग्जांपल है ग्रास प्लांट, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बना हुआ है। यहाँ पर ग्रास प्लांट बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी तादाद उसने यहाँ पे बताई है 2000 आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। अब माइस इस पे कितने हैं? 25। तो 2000 को किस तरह से शो किया हुआ है और 25 को किस तरह से शो किया है, ये पायरामिड कहलाता है। अब वन ऑल है जो इसके ऊपर
अपनी खुराक हासिल कर रहे हैं। ये इकोलॉजिकल पिरामिड है। अब हम एक और मिसाल देखते हैं जिसमें यहाँ पर इस इकोलॉजिकल पिरामिड को समझाने के लिए बताया गया है कि बाज़ औक़ात प्रोड्यूसर का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक इंडिविजुअल भी बहुत सारे प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर को फीड करवा सकता है। जैसा कि यहाँ पे ओक ट्री को आप देख सकते हैं, ओनली वन ओक ट्री इज़ फीडिंग द लार्जर नंबर ऑफ कैटरपिलर्स, वाइल द कैटरपिलर्स को जो है वो कौन खा रहा है, ब्लू टिट। देन कम्स द स्पैरो हॉक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस इकोलॉजिकल पिरामिड से इंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पर सिर्फ एक ओक ट्री जो है इतनी बड़ी फूड चेन और फूड वेब को चला रहा है। उसके बाद पिरामिड बायोमास, यहाँ पे एनर्जी पिरामिड बायोमास जो है वो टोटल वेट को बताता है एट ईच लेवल ऑफ द फूड चेन। तो पिरामिड ऑफ बायोमास एज ऑलवेज पिरामिड शेप, जितनी उसकी इंडिविजुअल की तादाद होगी उतने ही उसमें जो है पिरामिड का मास होता है ज़्यादातर। एनर्जी ऑफ द पिरामिड, अ पिरामिड ऑफ एनर्जी इंडिकेट्स द एनर्जी content in the biomass of each trophic level. These pyramid shows that less energy reach on each successive trophic level from the less benefited. तो इसमें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,000 जूल्स जो है वो प्रोड्यूसर एनर्जी उनके पास थी, वहाँ से ट्रांसफ़र जो हुई है 10,000 जूल हुई है, और इसके 10% जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर को, देन कम्स द टर्शियरी कंज्यूमर। देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के पिरामिड्स हमें शो करते हैं कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, एंड देन आफ्टर टुवर्ड्स द decomposers. This diagram is actually showing the energy flow within an ecosystem. Then interaction within ecosystems. This is known as competitions, cooperations, predation, symbiosis. अब ये सारे आप जानते हैं, डेफिनेशंस आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं बच्चे। तो इसमें सबसे पहले कंपटीशन के बारे में आप डिफ़ाइन कर देंगे। देन कंपटीशन 2 टाइप का होता है, इंटर स्पेसिफिक एंड देन इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक इज आल्सो वी कैन डिफाइन इट द कंपटीशन बिटवीन 2 सेम individuals. This is known as intra-specific competition, while inter-specific is a competition between 2 different individuals. Like हम कहते हैं कि लाइन और ह्यूमन के दरमियान मुकाबला है, तो ये इंटर होगा, और ह्यूमंस और ह्यूमंस के दरमियान होगा तो ये इंट्रा-स्पेसिफिक कंपटीशन आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है कॉपरेशन, दोनों मिलकर रहते हैं या नहीं, इस पर डिपेंड करता है जी। कॉपरेशंस दोनों टुगेदर मिलकर रहते हैं, इसको कॉपरेशन कहते हैं। predation, one species feeds on another, this is predator or host relationship है। then comes the symbiosis, 2 different species who live together in a close relationship benefit each other, one benefit while other is not affected। अब इसकी 2 टाइप्स हो सकती हैं इसकी बेसिस पे, म्यूचुअलिज्म एंड देन कमेंसरिज्म। bees and flowers, 2 species interacting with each other that benefit both species। bees को क्या फ़ायदा होता है कि उन्हें खुराक मिलती रहती है, और फ्लावर को क्या मिलता है, रस मिल जाता है, हनी मिल जाता है। दैन कमेंसलिज्म, इसमें अटैच विद वन अनदर, एक को फ़ायदा होता है दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं होता, जिसमें आपने वो अक्सर फ़िश के बारे में पढ़ा हुआ है कि वो साथ जहाँ भी जाती शार्क फिश वो इसको लेकर जाती है, उसको फ़ायदा कोई नहीं, लेकिन दूसरी फ़िश को फ़ायदा होता रहता है। यहाँ पर जेली फ़िश की और हाइड्रा की एग्जाम्पल भी दी हुई है। दैन कम्स द पैरासाइटिज़म, इसको भी बहुत अच्छे से आप समझते हैं। एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, तो बॉडी के अंदर जो रहेंगे एंडोपैरासाइट, एक्टो हैं जो बॉडी से बाहर की जानिब से अटैक करेंगे। देन कम्स द समरी, तो इसको आप देख सकते हैं, मैं आहिस्ता से स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको। इकोलॉजी, बायोटिक फैक्टर, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ्स, फूड चेन, फूड वेब, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, म्यूचुअलिज्म। तो आज हमारा तकरीबन कंसेप्ट जो थे इकोलॉजी के वो क्लियर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वालिटी ऑफ लाइट और क्वालिटी ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।